آج ہم جس افسانے پر بات کریں گے یہ افسانہ احمد ام قاسمی کا بڑا ہی معروف افسانہ ہے، اور معروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نمائندہ افسانوں میں سے ایک ہے۔ تو افسانے کی کہانی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گاؤں میں کبڈی کا کھیل شروع ہونے والا ہوتا ہے، میدان سج چکا ہوتا ہے، عوام پہنچ چکی ہوتی ہے، اور سارے لوگ جو دور دور سے کبڈی کا کھیل دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بالخصوص اس گاؤں کا جو ایک بڑا نامور کھلاڑی ہوتا ہے جس کا نام مولا ہوتا ہے، تو اس کا کھیل دیکھنے کے لیے سارے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہوتا ہے تو مولا ابھی تک میدان میں نہیں آتا، تو لوگوں میں ایک طرح سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی تک ان کا پسندیدہ کھلاڑی کیوں نہیں آیا، تو لوگ میدان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑا ایک برا شگن سمجھا جاتا ہے، تو جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر رکنے کے لیے مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں جو مولا ہے وہ اپنے جوڑی دار تاجے کے ساتھ میدان میں داخل ہوتا ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر دونوں یا علی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور میدان میں آتے ہی جس طریقے سے پہلوانوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وہ میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی مولا کو خبر ملتی ہے کہ رنگے اور اس کے بیٹوں نے مل کر اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً ہی ان کی چوپال کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ یہ خبر سنتے ہی باقی بھی سارے جو لوگ تماشائی وہاں جمع ہوتے ہیں وہ مولا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان کی چوپال پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ باپ بیٹے وہاں پر گنڈاسے لیے کھڑے ہیں اور اس کو للکار رہے ہیں۔ اتنے میں لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ سے لڑائی نہ ہو یا ایک اور قتل نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہی لوگ ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مولا کو اور زیادہ للکارتے ہیں، اسے بغیرت کہتے ہیں اور بزدل کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے، لیکن بیچ میں لوگوں کی وجہ سے وہ ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو ان کے ہاں ایک شخص ہوتا ہے جسے سارے پیر صاحب کہتے ہیں، پیر نور شاہ۔ وہ مولا کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور بالآخر وہ ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر آ جاتا ہے، اور پھر وہ سب کو قرآن کو دیکھ کر پھر سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ مولا سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ اور اپنے باپ کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو مولا جیسے ہی وہاں سے پلٹتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم رو رہے ہو؟ تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو کیا اب میں روؤں بھی نہیں؟ جیسے وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، کیونکہ اس کی ماں کا یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اس نے باپ کا بدلہ نہیں لیا۔ لیکن وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ اپنے باپ کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے، اور سب کی یہ رائے ہوتی ہے کہ تھانے جا کر جو قاتلین ہیں ان کے خلاف رپٹ درج کروائی جائے۔ تو یہ قافلہ تھانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس دوران ایک اور خبر آتی ہے کہ کسی نے رنگا کو اس کی چوپال سے نکلتے ہی قتل کر دیا ہے۔ اب جو رنگے کے بیٹے ہوتے ہیں وہ فوراً اپنے گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں اور تھانے کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہ مولا کے خلاف رپٹ درج کروا سکیں۔ جب وہ تھانے پہنچتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ مولا وہاں پہلے ہی موجود ہے، وہ ان کے خلاف اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے قاتل ثابت کریں، اور وہ ان پہ مقدمہ درج کروا رہا ہوتا ہے۔ خیر دونوں فریقین کی غصے کو دیکھتے ہوئے تھانے دار ان پر پرچے وہ کاٹ دیتا ہے، لیکن ثبوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں فریقین آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اس کا ماتھا چومتی ہے اور اس کو شاباش دیتی ہے۔ تو لیکن کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں ایک اور نئی بحث چھیڑ جاتی ہے، جس کا کہہ لیں کہ مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رنگے نے تو اس کے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو کھڑا اپنے بیٹوں کو شہ دے رہا تھا، اصل قاتل جو اس کا بڑا بیٹا ہے وہ ہے۔ تو اس بحث کو دو چار دن گزرتے ہیں تو ایک دن اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے رنگے کا، وہ بھی اپنی چھت پر مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ پھر سے مولا کے خلاف رپٹ درج کروائی جاتی ہے، پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے، اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن وہ تمام تر ٹارچر سہ جاتا ہے اور اپنی زبان نہیں کھولتا۔ تو اس طرح وہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی ماں پھر سے وہ آتا ہے تو اس کی ماں اس کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بس دو بیٹے رہ گئے ہیں اس کے، اور ان کو بھی ختم کر دے، اس طرح رنگے کے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اس کی ساری نسل ختم کر دے۔ اب دو قتل کرنے کے بعد اور سزا سے بچنے کے بعد مولا کی حیت، اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، اس کی مونچھیں بڑھ جاتی ہیں،
और उसका लिबास, वज़ाकत सारी जो होती है वो बड़े बड़े बदमाशों जैसी होती है, और लोग उससे खौफज़दा भी होते हैं, उसकी एक दहशत बन जाती है इलाके के अंदर। और मज़ीद उस दहशत में इजाफ़ा करने के लिए हर वक्त वो अपने पास गंडासा रखता है और एक लाठ रखता है जो उसकी कद से भी बड़ी होती है। तो वो सारा दिन कोई भी काम काज नहीं करता, बाजारों में गलियों में घूमता रहता है, और वो जहाँ भी बैठता है अपनी लाठ को सामने बिछा देता है, और किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती कि उसकी लाठ के ऊपर से फलांग सके। बल्कि औरतें और बच्चे तो जब देखते हैं कि जिस गली में मौला गुजर रहा है या मौला बैठा है, तो वो तो रास्ता ही बदल लेते हैं। तो इसी दौरान एक दिन उसका जो सबसे करीबी दोस्त होता है, जो कि अफसाने के आगाज में जब वो रंगे का कत्ल करता है, और रंगे के कत्ल करने के बाद वो थाने पर वक्त इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि उसका जो दोस्त ताजा होता है, उसका घोड़ा उसके काम आता है। तो वो उसका करीबी दोस्त भी होता है और उसकी मदद भी करता है। तो वो फिर एक बार उसके पास आता है उसे समझाने के लिए कि जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरनी, इस बदमाशी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बदला जो तुमने लेना था तुम ले चुके हो, अब अपने काम काज की तरफ तवज्जो करो। लेकिन मौला उसे धुतकार देता है। उल्टा जो भी मौले को नसीहत करता है, तो मौला को ये लगता है कि ये मुझ पर तर्स खा रहे हैं, ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं, और जब उसे इस चीज का एहसास होता है तो वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है। तो ताजे को कहता है कि आज तक हमारी दोस्ती थी, हम भाई थे, लेकिन तुमने मुझ पर तरस खाया, मुझे कमजोर समझा, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, आइंदा मेरे पास ना आना, वरना नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होगे। तो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है, जबकि जो रंगा के दो बेटे बच जाते हैं, एक का नाम गुल्ला होता है और एक का नाम खुल्ला, जिस तरह देहातों में एक नेक नेम का रिवाज होता है। तो जो उनका उसका बेटा खुल्ला होता है वो फौज में भर्ती होकर वहां से चला जाता है, और जो गुल्ला होता है वो एक दूसरी बस्ती जो पास ही होती है उस गांव के, वहां का एक बड़ा चौधरी होता है जिसका सियासी असर रसूख भी होता है, लेकिन उसका असल पेशा लोगों की भैंसें चोरी करना, गायें चोरी करना, रस्सागीर होता है वो चौधरी, अपने इलाके का बहुत बड़ा। लेकिन चूंकि सियासी असर रसूख और थाने में उसकी जान पहचान की वजह से वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। उल्टा अगर कोई खोजी जानवरों के कदमों के निशान पर चलते चलते उसके अगर डेरे तक पहुंच जाता, तो उस खोजी का अपना सुराग गुम हो जाता। तो वो जो गुल्ला होता है वो उसके साथ शामिल हो जाता है, और वो चोरी चकारियां और डकैतियां करने में मसरूफ हो जाता है। इस तरफ गांव में मौला उसी तरह दहशत का निशान बना घूम रहा होता है। एक दिन वो गली में बैठा होता है तो एक लड़की उसकी लाठ के ऊपर से गुजरती है। उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, और उसको इस तरह से डराने की कोशिश करता है। तो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, उल्टा तो मुझे तुम पर तरस आता है। अब जब लड़की ये बात करती है तो मौला को, वो वैसे भी जो उस पर तरस खाता है, जो उसको कमजोर समझता है, तो उसके अंदर तो आग जल जाती है। लेकिन लड़की इस तरीके से बात करती है कि मौला उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा वो उसके पीछे चल पड़ता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देती। अ, उसकी जगह पर एक दूसरी औरत जो वहां से गुजर रही होती है वो उसे बताती है कि वो जो उसके दुश्मन होते हैं उनमें जो छोटा होता है, रंगे का जो छोटा बेटा होता है, ये उसकी मंगेतर है राजू। तो इस तरीके से अब उस लड़की के मिलने के बाद मौला में एक और तब्दीली आ जाती है। अब वो गलियों में घूमना बंद कर देता है, उस तरीके से बाजारों में बैठना छोड़ देता है, या तो सारा दिन घर पड़ा रहता है या अकेला खेतों में घूमता रहता है। तो इसी तरीके से दिन गुजर होते हैं। एक दिन रात को एक शोर सा बुलंद होता है, वो घर से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि चौधरी जो मुजफ्फर, जो के बड़ा रस्सागीर होता है, उसके कोई कारिंदे किसी दूसरे गांव से गाय भैंसे चोरी करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसके गांव वाले वहां से उनको गुजरने नहीं दे रहे होते। तो उनके आपस में तू तकार हो रही होती है। तो मौला उनसे वो सारे जानवर छीन लेता है और कहता है कि चौधरी से कहना कि मौला ने नहीं आने दिया, तो मौला की इजाजत के बगैर यहाँ से तुम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। तो वो चुप करके उसे डरा धमका के वहां से चले जाते हैं। मौला घर आके अपनी माँ से कहता है कि ये जानवर जो है हमारे मेहमान हैं, इनके मालिक बस पहुंच गए होंगे, तो जब वो आएंगे इनको ले जाएंगे। अगले दिन वो किसान जिनके जानवर चोरी हुए होते हैं वो आते हैं और अपने वो जानवर लेकर चले जाते हैं। तो इसी दौरान एक बार फिर बाजार में उसकी मुलाकात होती है राजू से, वो लड़की से जो उसके उसको पहले भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करके चली जाती है, जिससे मिलने के बाद उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है। तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। तो इसी तरह बातों बातों में उसे मालूम होता है,
पड़ता है कि वो लड़की गाँव में, वो गाँव से थोड़ा बाहर रहती है अपने माँ बाप के साथ, वो गाँव में घी बेचने के लिए आई है। तो वो उसे किसी तरह राजी कर लेता है कि ये घी हम खरीदेंगे, तो वो उसको अपने घर लेकर आ जाता है। लेकिन घर उसकी माँ उस लड़की की बेइज्जती कर देती है, क्योंकि वो उसे कहती है कि हमारे और तुम्हारे खानदान के दरमियान दुश्मनी है, जिनके घर तुम्हारी शादी होनी है उनका खून मेरे बेटे के हाथों पर, और तुम इतनी बगैरत हो कि तुम घी बेचने के लिए हमारे घर आ गई हो। आगे से लड़की भी उसकी माँ पर गुस्सा करती है, तो मौला को ऐसे लगता है कि उसके एक गाल पर उस लड़की ने थप्पड़ मारा और दूसरे गाल पर उसकी माँ ने थप्पड़ मारा है। तो वो लड़की वहां से चली जाती है। तो ये मौला की वही अपनी मामूलात जिंदगी चाल रहे होते हैं। उल्टा वो अब होता ये है कि लारी अड्डे के पास ही एक बंदा छोटा सा चाय का होटल खोलता है, तो मौला हर वक्त उसी होटल पर पड़ा रहता है। तो एक दिन बस रुकती है, बस में वो जो रंगे का छोटा बेटा होता है, वो अब 4-5 मुस्टंडों के साथ वहां आता है, और वो आके मौला से कहता है कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं चौधरी मुजफ्फर का एक पैगाम लेकर आया हूँ। तो वो कहता है हाँ क्या पैगाम है, तो वो उसको जोर से थप्पड़ मारता है। जब वो मौला को जोर से थप्पड़ मारते हैं तो वो सारे वहां से भाग पड़ते हैं। लेकिन इसी भागने में उस लड़के का पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। इतने में मौला अपनी लाठी लेकर उसके सर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे कत्ल करने की बजाय या मारने की बजाय उससे बाजू को उससे पकड़ता है और उसे खड़ा करता है, और उसे कहता है कि मुझे चौधरी का पैगाम मिल गया है और उसका जवाब भी मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसका जवाब मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हें दुल्हा बनना है। ये उसी का मंगेतर होता है जिस लड़की को मौला पसंद करता होता है, तो इसलिए मौला उसको छोड़ देता है। इतने में मौला की माँ को खबर मिलती है कि इस तरह से लड़ाई हो गई है, तो वो भी भागती हुई वहां पहुंच जाती है, और वो आके अपने बेटे को लान तान करती है, कि उसे ताने देती है कि तुमने उसको क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्यों जाने दिया। तो मौला चुप हो जाता है, उसको कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी माँ पूछती है कि अब रो क्यों रहे हो, तो अपनी माँ से कहता है कि क्या अब मैं रोऊं भी नहीं, और यहीं पर यह अफसाना खत्म हो जाता है। तो अगर हम देखें इस अफसाने की कहानी को देखें, तो जिस तरीके से एक देहाती पस मंजर में खानदानों के दरमियान दुश्मनियां होती हैं, कत्लो गारत होती है, मुकदमे होते हैं, तो ये उसकी एक कहानी है। इसमें एक समाज की एक अक्कासी है कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियां शुरू होती हैं, और फिर उसमें किस तरीके से जानें ज़ाय होती जाती हैं, और किस तरीके से एक आम इंसान जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, और वो इस रास्ते पर इतना आगे निकल जाता है कि उसके लिए वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ से ये कहानी का एक सादा सा एक ये पहलू है। जो दूसरा इस कहानी का पहलू है जो अफसाना निगार हमें बताना चाहता है दरअसल, वो है मोहब्बत। कि वो ये दिखाना चाहता है कि मोहब्बत ही एक ऐसा अमल है, एक ऐसा पहलू है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल कर रख सकता है। अगर किसी भी इंसान, चाहे वो इंसान कितना ही पत्थर क्यों ना हो, वो इंसान कितना ही दरिंदा क्यों ना हो, अगर उसके दिल में, अगर उसके रूह में, अगर उसके जिस्म में, सोच में, यही अगर उस इंसान की शख्सियत में अगर हम मुख्तसर बात करें, मोहब्बत फूट पड़ती है किसी भी चीज़ के हवाले से। यहाँ चूंकि वो एक लड़की को वहाँ उस अब हम कह लें कि अलामती तौर पर अफसाना निगार लेकर आता है, लेकिन मोहब्बत किसी भी चीज़ से की जा सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत शामिल होती है, तो वो जो मोहब्बत का जज्बा है वो इंसान को बदल कर रख देता है। यही वजह है कि जो मोहब्बत है वो इंसान को पत्थर से दोबारा इंसान बना सकती है, उसको दरिंदे से असफल से अशरफ बना सकती है। और एक यही जज्बा है कि अगर ये जज्बा हर दिल में मौजूद हो, तो ना ये दुनिया इस तरह से जहन्नम होगी, ना ये मुआशरा इस तरह से जहन्नम होगा।